Now, whenever we have a closed container containing water, so what happens here? The molecules of water have intermolecular interactions, and any molecule which is at the center is having force of attraction from all sides, and net force on this molecule in the bulk is going to So, be G. Yes? so नहीं दिख sorry रहा to आपको? बताइए sorry. बताइए. So actually our internet connectivity is not very fine today and news में आ रहा है कि it might stop working anytime. तो is it possible that you can record the lecture so in case we miss it तो हम देख पाए बाद में? बच्चों मैं कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है? Yes sir. Thank you so much sir. ओके. बच्चा रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? वी कैन रिपीट द सेम लेक्चर इफ नीडेड. अभी आप करो, जैसी प्रॉब्लम आएगी मुझे बताना. तो Yes sir. ये दिख रहा है आपको पिक्चर जो मैं बना रहा हूँ? आर यू एबल टू सी इट Yes क्लियरली? sir. Okay. So what I'm trying to say, molecules of water which are in the bulk have experienced force of attraction from all the directions. As a result, net force on the molecule becomes zero. So molecules in the bulk are free of any force of attraction. Whereas if the molecules are on surface, these are surface molecules, so they experience an inward force of attraction because of intermolecular interaction between the liquid molecules. So some molecules have meaning higher kinetic energy because they don't experience any force of attraction. Some have lower kinetic energy because they experience some force of attraction. As a result, when we close this container, molecules with higher kinetic energy try to get converted into vapors like this. So slowly and gradually, more and more vapors will be formed. If I write here, let's say this is H2O in the form of liquid, and this is H2O in the form of vapors. So this phenomena starts where H2O in liquid form is getting converted into H2O vapors. Initially, this is one-way traffic. After some time, when this container becomes saturated with number of vapors which are going to be formed, then these vapors come very close to each other and they start converting back into liquid, and it becomes a reversible process. क्या ये बात समझ में आ रही है? और मैं इसको वैसे कह सकता हूं, suppose we have started with 100 moles of liquid. Initially there is no vapors, and a stage comes, let's say when we are left with 50 mole of this and 50 mole of this, and this is at a particular temperature. It's an assumption only. It can be 60-40 also, or 40-60 also, depending upon nature of liquid and temperature at which we are working. So a stage comes when 50 moles of liquid are left here in the form of liquid and 50 have become vapors. Now, this is called dynamic equilibrium. At this stage, the number of molecules that are going to get converted into vapors, let's say is 10 in 1 minute or 1 second, are equal to number of molecules that becomes that are converted into liquid. Meaning, जितने मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं एक टाइम में, उतने ही लिक्विड में कन्वर्ट होंगे. इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. क्या बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम? यस सर. बॉक्स का मतलब यहां पर ये जो रिएक्शन है क्लोज कंटेनर में ही हो सकता है. अगर ये ओपन कंटेनर होगा तो सारा पानी बाहर उड़ जाएगा, फिर यहां इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है क्या? Are you able to understand Yes, concept of dynamic equilibrium? Yes. सर एक बार रिपीट कर दीजिए शुरू से, मेरा इंटरनेट चला गया था. डायनेमिक इक्विलिब्रियम. हाँ, ये डायनेमिक पढ़ा हुआ है हालांकि आपने, फिर भी हम बात करते हैं.
देखो मैंने कहा हमने शुरू में लिक्विड लिया, लिक्विड के कुछ वेपर्स बने, शुरू में यहाँ पे 100 मोल लिए थे, 0 थे, आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आ गई जब 50 मोल वाटर रह गया, 50 मोल वेपर्स बन गए। ये हमारी अजम्पशन है, नंबर कुछ भी हो सकता है। तो एक स्टेज आने के बाद जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, अब क्योंकि वेपर सैचुरेट हो चुके हैं, दे आर आल्सो गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये बोथ वे फिनोमिना हो गया, रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट हो गया। अब जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर्स में जा रहे हैं, उतने ही वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं। इस स्टेट को बोलते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मौली आपने पूछा था, समझ में आया ना? यस सर। ओके, तो वैसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हेन वी से इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कंसंट्रेशन हो, कलर हो, दे गेट फिक्स्ड वैल्यू, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। ये नॉर्मली बोलते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन चल रहा है लेकिन दोनों तरफ का स्पीड इक्वल है। जितने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही लिक्विड में हो रहे हैं, और ये नंबर कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो व्हेनेवर वी हैव वाटर इन ए कंटेनर लाइक दिस, व्हेन इट अटेन्स इक्विलिब्रियम, एट दैट पॉइंट pressure exerted by the vapor is known as vapor pressure. Vapor pressure क्या हुआ? Pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid is known as vapor pressure. लिखेंगे इसको सब लोग? Write down vapor pressure of a liquid. Pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid is called vapor pressure. थोड़ा सा इसमें एक वर्ड और आएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड। वेपर्स बोला था हमने, वेपर्स ऑफ ए लिक्विड, ऐसे कर देंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। लिख लिया बच्चों? हो गया नोट सबका? यस सर। ओके, तो Yes, अभी sir. हमने अभी मैंने बताया आपको बेसिक डेफिनेशन, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम्स होते हैं, इसको भी फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। अगर यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया एंड यू गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। PCl5 gives PCl3 plus Cl2, that is chemical equilibrium. This is an example of physical equilibrium. Even if you dissolve sugar in water, that is also physical equilibrium, where physical state changes. समझ में आ रहा है सबको? And I also told you at equilibrium, various properties, physical properties like temperature, pressure, concentration, color remains constant. They have a fixed value at equilibrium. One more thing we need to learn here. आपने पढ़ा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस? पढ़ा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, गुड। तो जैसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर एक की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। आपने ऐसे बनाया था ना ग्राफ, एक यू हैव मेड ए ग्राफ, मैं बनाता हूं उसको भी। This is fraction of molecules. And this is velocity. And we observe
a graph like this. पढ़ा है ना आप लोगों ने? एक टेम्परेचर T1 पे बोल देते हैं इसको, where area under the peak, this area under the peak describes number of molecules that possess that particular speed. जैसे 0 से और 10 के बीच में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर हम इसको बोलेंगे तो हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, the velocity possessed by maximum number of molecules. Suppose value is 60 and this is 100 and this is 130. So molecules having very high speed are less in number. पढ़ा है ऐसा आप लोगों ने? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. कुछ और बताएंगे जो मैंने नहीं बताया हो तो आपको याद हो? Can you add something into this graph? Yes. So the temperature effect where the curve broadens. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बात भी कर लेंगे हम. और कुछ? और क्या होगा? टेम्परेचर, अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, एक तो ये ब्रॉडन हो जाएगा कर्व, और क्या होगा? सर इसकी पीक शिफ्ट हो जाएगी राइट में. पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाता है. नंबर 1, एक तो ये ऐसे बनेगा, मैं पहले बना देता हूं, ठीक है? और थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, ये हल्का सा मैंने शार्प कर दिया, इट वुड बी लिटिल ब्रॉडर. ओके, तो ये T2 है, मान लो दिस इज T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2. So what we observe, number of molecules having low speed has decreased. ठीक है, ये एरिया कम हो गया ना, ये वाला शुरू में जो है. And number of molecules having very high speed has increased. This area has increased. And there is overall shift in the graph towards right hand side. तो सभी molecule का स्पीड बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से. And we know also kinetic energy depends upon temperature. T/2 RT वाला फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने. Now only thing I want to ask you, why this height has decreased at higher temperature? ये जो मैक्सिमा है हमारा सेकंड ग्राफ में, इसकी हाइट जो है ये कम क्यों हो गई T1 से? इसको क्या एक्सप्लेन कर सकता है? सर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहेगा ना सर. कौन बोल तो रहा है? अगर वो हर्ष बताइए. सर हर्ष. हाँ बताइए. सर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना पूरे उसमें रिएक्शन में, तो इसलिए वो ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाता है, क्योंकि अगर वो उसी हाइट पे रहेगा तो मतलब एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसका मतलब ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है ताकि एरिया कांस्टेंट बना रहे. हाँ, एक्चुअल में क्या होता है ना, एरिया अंडर द पीक टेल्स यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर आप इस पीक को ब्रॉड करेंगे, ठीक है, अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाएंगे और एरिया सेम रखेंगे तो हाइट अपने आप कम हो जाएगी. ओके, यही होता है ना? यस सर. किसी को डाउट इसमें? ओके, सो व्हाटएवर यू हैव स्टडीड फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, सेम ट्रेंड इज सीन फॉर लिक्विड्स. लिक्विड आल्सो possess various speed. Many molecules of liquid possess various speed that can be shown by similar graph. It is also known as Maxwell-Boltzmann distribution of liquids. ठीक है बच्चों? Here again we can find out most probable velocity that also increases for liquid also. बिल्कुल सेम ग्राफ है, ये लिक्विड्स के लिए है, वो आपने गैसेस के लिए पढ़ा है. So I told you about basic phenomena, about the dynamic equilibrium. I told you about vapor pressure. I told you about how the molecules of liquid are distributed with respect to velocity. Now I can ask you one question. Can we find vapor pressure of a liquid? Let's say it is ethanol in a beaker. It's an open beaker. Can we determine its vapor pressure? Yes, Navya Malik? No sir. क्यों नहीं निकाल सकते सृष्टि? सर ओपन कंटेनर है. हाँ बिल्कुल, तो इट्स वेरी सिंपल, बट क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में. फॉर एनी सिस्टम व्हिच इज ओपन, वेपर्स आर गोइंग टू एस्केप, सो देयर विल नॉट बी एनी प्रेशर. ओके,
But in C, when you say talk about aqueous tension, जो ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर, उसमें क्या होता है, सी लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा एक्वस टेंशन होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? यस रचित, आपने क्वेश्चंस किया ना, डाल्टन लॉ ऑफ वार्शिप प्रेशर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना एक्वस टेंशन होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? There is a fixed value of aqueous tension, that is the vapor pressure exerted by water vapors. पढ़ा है बच्चों? Yes, Rachit. Are you here? Yes sir, I'm here. आप बताइए, कुछ आपको आइडिया है इसमें? और किसी को है क्या? ज्यादा डिटेल में आइडिया नहीं। यस, थोड़ा सोचने की बात है बस, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा होगा। चलिए, दिस इज अ क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इसमें कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं है, आप सोच सकते हो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। देखो, हम कह रहे हैं कि ओपन कंटेनर होगा तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर हम एयर में ह्यूमिडिटी की बात करें, सी लेवल पर ह्यूमिडिटी इज मोर and that is called aqueous tension, that is also known as vapor pressure exerted by water droplets, okay। तो वो क्या, कैसे उसको डिफाइन करेंगे हम? मीनिंग उसकी जो वैल्यू फिक्स होती है एक टेम्परेचर पर, तो हम कैसे मेजर करते हैं, या फिर कैसे उसको हम कहेंगे कि ओपन कंटेनर में एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वाटर वेपर्स का एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, कैसे? सर वो मतलब वाटर सरफेस तो पूरी अर्थ 70% वाटर से कवर्ड है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसको वो एक तरह से क्लोज नहीं बना देता उसको, सिस्टम को, तो शायद वैसे मेजर कर लें। कुछ ऐसा ही है इसका आंसर। फिर भी आप सोचेंगे और बेहतर सोचेंगे, और यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। ठीक है हर्ष? जी सर। Okay, so this is a question for thought of you, and I described first definition of vapor pressure. I don't think there should be any doubt. That is the pressure exerted by vapors of a liquid in equilibrium with the liquid. It is always in a closed container, and we can measure vapor pressure using devices like manometer. पढ़ा ना सब लोगों ने? Okay, now we'll talk about effect of temperature on vapor pressure. Effect of temperature on vapor pressure. Now it is seen that when we increase temperature, kinetic energy is going to increase. More and more molecules will be having higher energy, and they will be able to get converted into vapors. And it is observed, a graph is observed like this. There are two temperatures. Between the two temperatures, we get this graph. जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। आपने पढ़ा है कभी ट्रिपल पॉइंट के बारे में? क्यों बच्चों? और यहां पे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कितने लोगों ने पढ़ा ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, बता सकते हो? एनी आइडिया अबाउट दिस टू टेम्परेचर्स? ओके, फर्स्ट टेल मी अबाउट ट्रिपल पॉइंट। किसी को पता है क्या?
Triple point. So triple point two is the temperature at which three phases of matter coexist in equilibrium. ये हर्ष ने बोला ना, हर्ष नीला. Okay, this is temperature. Harish Neela. Okay. This is temperature at which all three states of water coexist. Okay, and it has a fixed value of pressure and temperature. You know that. Okay. And what is critical temperature? So the temperature above which the gas cannot be liquefied. Okay. Any other definition? आप लोगों ने ना एक गैसियस स्टेट में पढ़ा है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ा है ना आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, okay, sir. you have heard that suppose I want to determine critical temperature. So you have taken a system where in a tube, graduated cylinder, we have taken a liquid like this. And now you heat this system so that vapors are going to be formed. और एक स्टेज आएगा जब when this surface of separation will disappear and it would be a very highly condensed vapors in the container, and you will not be able to differentiate whether it is super saturated vapors or it is superheated liquid. ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? क्या आपने ऐसा पढ़ा है? क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस ऑफ सेपरेशन डिसअपियर हो जाता है. रचित, आवाज नहीं आ रही शायद रचित को. हर्ष दुबे. अच्छा. यस सर. ऐसा पढ़ा नहीं? लिक्विड स्टेट में आपने पढ़ा होगा ना, डिटर्मिनेशन ऑफ टीसी, पीसी एंड वीसी. यस सर. ये ऐसा कुछ पढ़ा था जैसे मैं बना रहा हूं ये? क्या आपने ऐसा पढ़ा कि भाई how to determine critical temperature? A temperature when surface of separation between liquid and vapors disappears is known as critical temperature. ऐसा ही पढ़ा क्या? सर ऐसे नहीं सर, डेरिवेशन थी थोड़ी बहुत. अच्छा, तो आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं किया टेम्परेचर निकालने का, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालने का? नो सर. नो सर. No, sir. अच्छा, हो सकता है टॉपिक रह गया होगा आपका, या अभी होता होगा. ओके, बट ओके, लेट्स पुट सम फोकस ऑन दिस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं थोड़ा दोबारा से बनाता हूं इसको. देखो ये हमने क्या किया, एक ऐसे एक कंटेनर लिया और ये ग्रेजुएटेड कंटेनर है. ग्रेजुएटेड का मतलब वी कैन मेजर द वॉल्यूम. और इनिशियली आई हैव टेकन वाटर इनटू दिस, और इट इज अ सिस्टम वेयर आई कैन चेंज द टेम्परेचर. बाहर मान लो हमने इसका ऐसा सिस्टम बना रखा है थर्मोस्टेट टाइप, जिससे पानी सर्कुलेट करता है और उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं जितना चाहें. तो अब अगर ये वाटर है तो अपना कुछ वेपर्स देगा, ऐसे कुछ वेपर्स होंगे हर एक टेम्परेचर पर. और इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, so more and more vapors will be formed. Clear? Once more and more vapors will be formed, a stage will come when this liquid, when this tube will be saturated with the vapors. And after that stage, it is going to become super saturated. Super का मतलब एक स्टेज पे तो क्या होगा, सारे भी वेपर्स हो सकते हैं अगर मैं इतना टेम्परेचर कर दूंगा. लेकिन एक स्टेज आएगा जब ये सरफेस ऑफ सेपरेशन जो दिख रहा है यहां पर हमारे को, ये नहीं दिखेगा. There will not be any clarity. अगर एक ग्लास ट्यूब है, you will not be able to differentiate that this is the liquid portion and this is the vapor portion. It would be just like जैसे फॉग जम जाता है. आपके शीशे पे फॉग जमता है ना कई बार, आजकल सर्दियों में बहुत देखते होंगे आप. तो it will look like something like this. A stage of super saturated vapors like this, and here it can also be said to be superheated liquid. दोनों ही केसेस में क्लियर नहीं दिखता. So if it is super saturated vapors, this surface of separation will disappear
And when it disappears, it is known as critical temperature. Temperature at which surface of separation disappears between the liquid and the vapors. आ रहा है क्या समझ में? Srishti? Yes, sir. Okay, so this is one of the definition of critical temperature. And you also know that properties which depend upon surface of the liquid, like surface tension of a liquid at critical temperature. Surface tension का आप सिंबल क्या लेते हो? गामा. इसको लेते हो ना गामा. ऐसे gamma is 0 at critical temperature. मीनिंग जब सरफेस ही नहीं होगा लिक्विड का तो सरफेस टेंशन कहां से आएगा? 0 हो जाएगा ना बच्चों. So at critical temperature, surface tension of a liquid becomes 0. Even at boiling point, अगर आप बॉयल कर रहे हो किसी लिक्विड को तो सरफेस क्या होता है? बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है ना. जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो भी सरफेस टेंशन 0 कहलाता है. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. जब सरफेस स्टेबल होगा तो ही मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस ए टेंशन इन टुवर्ड्स इनसाइड. इसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं. दिस इज अगेन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस. अंदर की तरफ जो पुल बनता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इज नोन एज सरफेस टेंशन. तो वो तभी होगी जब सरफेस होगा. सरफेस ही नहीं होगा तो आपका सरफेस टेंशन क्या होगी? 0. तो एट 2 टेम्परेचर surface tension becomes 0. Number 1 at critical temperature, number 2 at boiling point. इसको हम TBB बोलते हैं ऐसे. Okay, so I'm trying to add some more to your knowledge regarding critical temperature because we'll be using it here. आया क्या समझ में बबीता? बबीता पांडे, आप ही ने मैसेज किया था ना कि एनएट का प्रॉब्लम है. Yes, sir. अब 52 स्टूडेंट्स कर रहे हैं क्लास अभी, तो चलने देना इसको. Yes, sir. ओके, तो समझ में आ रहा है क्या क्रिटिकल टेम्परेचर कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक स्टेज आ जाता है व्हेन दिस लिक्विड बिकम्स लाइक सुपर सैचुरेटेड वेपर्स. ओके, एंड दिस सरफेस ऑफ सेपरेशन डिसअपीयर्स and that is known as critical temperature. So this is one of the definition to determine value of critical temperature. हटा दें इसको. समझ में आ गया ना बच्चों? Okay, so what happened here? This is a vapor pressure and versus temperature graph. It is observed that vapor pressure increases with temperature. The graph starts from triple point where we have only liquid. After triple point, we are having liquid only. And it is showing this curve type of nature till critical temperature. Critical temperature तक क्यों लिया हमने उसकी हम बात करेंगे अभी इक्वेशन लिखते वक्त. उसको हम पूरा बात करेंगे. So it is observed that was observed by first Clapeyron. Clapeyron was a scientist who gave a empirical relation which is known as Clapeyron equation, and according to this dP by dt, where P is vapor pressure, was found to be equal to enthalpy of a molar enthalpy of vaporization divided by temperature into molar enthalpy of vapors minus molar enthalpy of liquid. Sorry, enthalpy nahi, volume, molar volume. Volume of 1 mole of vapors and volume of 1 mole of liquid. You can note down here, this is
molar enthalpy of vaporization. Here VMV is volume of 1 mole of vapors, and VML is volume of 1 mole of liquid molecules. इक्वेशन समझ में आ रही है सबको? सर वो क्या लिखा आपने, वॉल्यूम लिखा टी मल्टीप्लाइड बाय, हाँ टी मल्टीप्लाइड नहीं है, ब्रैकेट शुरू हो रहा है ये, स्मॉल ब्रैकेट, VMV का मतलब नीचे लिखा है यहाँ पे ये, इट इज मोलर वॉल्यूम फॉर वेपर्स. अगेन VM, L, it is molar volume of liquid, or molar volume in liquid state, molar volume in vapor state of the same substance. ओके सर, थैंक यू. आ रहा है क्या समझ में सबको? P का मतलब वेपर प्रेशर, T का मतलब टेम्परेचर. So dP by dt is effect of temperature on vapor pressure. And all of you know about enthalpy of vaporization. पढ़ा हुआ है ना ऐसा तो आप लोगों ने? What is enthalpy of vaporization? कोई डिफाइन कर सकता है? Yes sir. Sir, amount of heat which supply to the 1 mole of liquid at its boiling point, so as to convert it into the vapor state. विशाखा बोल रहे हैं ना? Yes sir. Okay, good. और कोई बता सकता है इस बारे में? ठीक बताया था विशाखा ने वैसे. Okay, when we say enthalpy of vaporization, if you have, let's say 1 mole of any liquid, let's say I have taken example of water, and it is getting converted into steam or vapors, and that is happening at boiling point, let's say 100 degrees centigrade. So whatever heat is required to convert 1 mole of liquid into its vapors at its boiling point is known as enthalpy of vaporization or molar enthalpy of vaporization. समझ में आ रहा है क्या? Amount of heat required to convert 1 mole of a liquid into vapors at boiling point. लिख लेंगे जल्दी से definition. Enthalpy of vaporization. Enthalpy required to convert 1 mole of liquid into vapors at boiling point. At boiling point. हो गया बच्चों? बच्चों नोट हो गया सबका? Can we move forward? Yes, sir. So this is the equation which I initially given by Clapeyron. This equation was further modified by Clausius. Then we can talk about why we have taken up to critical temperature. Let's see. So initially this was proposed by one scientist, Clapeyron, then Clausius, the another scientist, gave some modified this equation based on some assumptions, and the equation is known as Clausius-Clapeyron equation. Clausius made some assumption. The first assumption was
he said that let's assume that since the molar volume of vapors is very high as compared to molar volume of liquid, or you can say liquid volume of 1 mole of liquid is very small. This is volume of 1 mole of liquid is very small as compared to volume of 1 mole of vapors. Okay, इसको V लिखा हुआ है हमने, तो V रहने देते हैं. Second assumption, he said, let's assume that vapors of the liquid behave like ideal gas molecules. Now this is an assumption only. It is not true. Vapors have force of attraction and they are very close to each other. In ideal gas, there is no force of attraction. But he assumed that, let's assume if these two assumptions are true, then what is going to happen with the equation? So let's see what happens. अगर ये VMV ज्यादा हो जाएगा तो आपका इक्वेशन बन जाएगा dP by dt ये VMV बच जाएगा बस. इसको हम इग्नोर कर देंगे, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को. और इसकी जगह पे अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन है तो हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम जो होता है किसी भी उसका गैस का, तो आइडियल गैस इक्वेशन से आ जाएगा. RT by P लिख देंगे इसको. ओके, तो इफ आई यूज इट, it becomes dP by dt equals to enthalpy of vaporization, molar enthalpy of vaporization divided by RT square, क्योंकि T पहले से था, एक RT और आ गया, divided by P. समझ में आ रहा है क्या सबको? I have used ideal gas equation for 1 mole. क्योंकि मोलर वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो N की वैल्यू 1 ली हुई हमने. हो गया नोट सबका? Now if I transfer the quantities here, it becomes dP by P equals to ये ऐसे आ जाएगा. ट्रांसफर करेंगे क्वांटिटीज को. और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, for large change when temperature changes from T1 to T2 and pressure changes from P1 to P2. So we will get here आप बता सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ ऐसा इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन के टाइप का आएगा ये आएगा आपका log of P2 upon P1 this is called integrated form of Clausius-Clapeyron equation. और अगर मैं इसको ln की जगह log कर दूंगा तो 2.303 यहां आ जाएगा. This can also be written as log of log P2 upon P1
ये आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन जो न्यूमेरिकल्स में काम आता है। क्लियर बच्चों? बस डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गई, अब बस लास्ट पॉइंट रह गया, ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों लिखा हुआ है हमने ऊपर। नोट हो गया सबका? यस, नोट हो गया बच्चों सबका? यस सर। यस सर। Yes. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो नहीं हुआ किसी को? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? ओके, तो यहां पर एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाई वी हैव टेकन इट अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसके लिए आप फर्स्ट अजम्पशन देखेंगे दोबारा से। वी हैव अज्यूम्ड दैट this molar volume of liquid is very very low as compared to molar volume of vapors. अब जब क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, मैंने बताया था आपको, ये कंडेंस हो जाता है उस टाइम क्रिटिकल टेम्परेचर पर। मैंने जो आपको एक पिक्चर दिखाया था, जब वेपर्स बहुत क्लोज थे, they were like super saturated vapors, ऐसा था। तो ये बहुत क्लोज होंगे, they cannot show नंबर वन वेरी हाई वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है इस टेम्परेचर के बाद, इस टेम्परेचर पर। और नंबर टू, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होती है। दोनों assumptions जो हमने लिए यहां पर, दे डोंट होल्ड ट्रू नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, बात समझ में आ रही है क्या? तो जो हम कह रहे हैं कि आइडियल बिहेवियर शो करेंगे वेपर्स, वो भी नहीं हो सकता यहां पर। तो अगर हम कह रहे हैं कि मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लिक्विड से, तो ऐसा भी सच नहीं है। इससे पहले इसी ट्यूब के अंदर हमने ऐसे दिखाया था आपको, लेट्स से दिस वाज लिक्विड, तो ये 50% कहो या 30% कहो, बट इट इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेपर्स। समझ में आ रहा है क्या? यस, संजना है आज क्लास में? संजना, समझ में आ रहा है आपको? सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ, देखो मैंने क्या कहा, हमने इस ग्राफ को ट्रिपल पॉइंट से शुरू किया। ट्रिपल पॉइंट से पहले क्या होता है, ये जो लिक्विड है, जो मीनिंग जो सब्सटेंस है, it can be in either of the state. It can be solid, it can be liquid, it can be gas at triple point. But after triple point, it has only one state, that is liquid state. तो जब ये ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे आके हमने इसको रोक दिया, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, it becomes super saturated vapors or it you can say super heated liquid. जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड देखते हैं आप, अगर आप उसको एक्स्ट्रा हीट करेंगे तो उसको तो सुपर हीटेड लिक्विड और सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। तो यहां पर आकर के जो लिक्विड होगा, जो वेपर्स होते हैं, वो इस तरह से कंडेंस होने को होते हैं, बहुत सुपर सैचुरेटेड होते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। So when they are very close, their volume is not very high as compared to volume of the liquid. एक मोल लिक्विड लिया, एक मोल के वेपर्स बन गए, तो ये नेग्लिजिबल नहीं हो सकता। ये वाला जो कंडीशन हमने लिया, assumption जो लिया है, ओके। और दूसरा हमने लिया है that vapors of a liquid behave like ideal gas, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, they should not have any force of attraction. So when they are very close to each other, they experience strong force of attraction. So that's why the graph we have taken for Clausius Clapeyron equation up to critical temperature. इसके बाद ये दोनों assumptions true नहीं होती। विशाखा समझ में आया क्या? Yes. विशाखा और संजना आपको?
Yes, sir. ओके, किसी को डाउट है क्या? सृष्टि? No doubt, clear है. Okay, so this is all about Clausius-Clapeyron equation, and now we can talk more. अभी कितना टाइम है हमारे पास? ठीक है, इतना 3 मिनट। अभी खत्म कर देते हैं क्लास को, बच्चे भी कम है, but only very simple things are left. Suppose I ask you about boiling point. इसी ग्राफ में अगर आप देखेंगे, suppose this was vapor pressure, and let's say this is 1 atmospheric pressure. तो जहां पर अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ा है ना आप लोगों ने? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो पढ़ी है ना बच्चों? इसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे और ज्यादा फैक्टर्स की जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट में भी वी हैव अबनॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। जैसे माउंटेन्स पे अलग होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे ही अगर आप घर में भी चाहें तो प्रेशर कुकर में बढ़ा देते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। सो ऑल दीस थिंग्स वी विल डिस्कस, दे आर वेरी मीनिंग सिंपल थिंग्स। विद दैट दिस टॉपिक वुड बी ओवर। 10 मिनट और चाहिए इस टॉपिक में, ठीक है बच्चों? सर अटेंडेंस ले ली मैंने। किसने बोला है वैसे? किसने रिमाइंड करवाया? सर संजना। ओके गुड, तुम्हें याद आ गया आज, सही है। मैं ले लिया था अभी जब आपसे बात किया था ना, आपका नाम याद आते ही मैंने ले लिया था। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम। कल ही है ना क्लास हम लोगों का? Yes sir. Tomorrow we will try to start viscosity. All of you should read it because you have done in your practical lab. उससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे जो वाइवा में आते हैं, so come prepared for वाइवा on viscosity. सर कल क्लास होगी सर कल? हाँ, अभी ना वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई जो हम लोगों का था टीचर्स का विद प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल। तो एक नोटिस आ गया था कल that all meetings are postponed till further notice. ठीक है हर्ष? ओके सर, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय। थैंक यू। बाय। Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.